بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 4 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں کلندر ذات، آواز تالیہ، مصنف امجد جاوید۔ ماں کا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ میں نے سونی سے کوئی بات نہیں کی اور باہر نکل گیا۔ میرا رخ پھر سے اچھو کریانے والے کی دکان کی طرف تھا۔ میں نے جاتے ہی پیرزادہ وقاص کا نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ علاقے کا معروف آدمی تھا، ایسے سارے لوگوں کے نمبر اس کے پاس ہوتے تھے۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے ریسیور مجھے تھما دیا۔ دوسری جانب رنگ بجنے لگی۔ چند گھنٹیوں کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے پیرزادہ وقاص کی آواز ابھری تو میں نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نور نگر گاؤں کا جمال بات کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ بندے بھیجے تھے میری طرف تو نے، کیا وہ واپس پہنچ گئے تیرے پاس؟ ابھی تک تو میں نے کوئی بندہ نہیں بھیجا تیری طرف۔ اگر بھیجتا تو وہ تجھے لے کر ہی میرے پاس آ جاتے، تم یوں فون پر بات نہ کرتے۔ ویسے ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ ایک طوائف تیرے پاس ہے۔ تصدیق ہوتے ہی بھیج دوں گا بندے۔ اچھا کیا تو نے فون کر لیا۔ بتا، وہ ہے تیرے پاس؟ ہاں، وہ میرے پاس ہے۔ جو بندے تو نے بھیجے تھے میں نے انہیں زخمی کر کے واپس تیرے پاس بھیج دیے ہیں۔ جھوٹ کے بولتا ہے؟ مرد ہے تو سچ بول۔ میں نے تیزی سے کہا۔ کہا نا، میں نے نہیں بھیجے۔ اگر میں اپنے بندے بھیج دیتا تو وہ لڑکی لے کر ہی آتے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، اس نے گھراتے ہوئے کہا۔ پھر تجھے کیسے پتا چلا؟ انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ اس لڑکی کے سنگی ساتھی تیرے پاس ہے، اور باقی رہی بندے بھیجنے کی بات تو اپنا یہ شوق بھی پورا کر لے۔ میں تیرے انتظار میں ہوں، خود آنا ان کے ساتھ۔ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تو اس نے کافی حد تک تحمل بھرے لہجے میں کہا، دیکھ جمال، میں تیرے جیسے ہیرے کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تم میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے۔ تیرے جیسے کئی فنکار میرے ڈیرے پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں اسے شہزوری نہیں مانتا۔ وقت جس کے ہاتھ میں ہو وہی شہزور ہوتا ہے اور وہی طاقتور۔ میرے ساتھ دھیمے لہجے میں بات کر، اصل بات کیا ہے؟ وہی جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، میں نے سکون سے کہا تو وہ نرم لہجے میں بولا۔ تو سن، اس لڑکی کے سارے ساتھی میرے ڈیرے پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس لڑکی کے انتظار میں مجھے کہا گیا ہے کہ دوپہر سے پہلے وہ ان تک پہنچ جائے گی۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے، لیکن یہ غلط بات ہے کہ میں نے کوئی بندے تمہاری طرف بھیجے ہیں۔ تو پھر تو بھی سن لے، تیرا نام لے کر 6 بندے میرے گھر پر حملہ کرنے آئے تھے تاکہ اس لڑکی کو اٹھا لے جائیں۔ میں نے تم سے اس لیے پوچھا کہ سازش کرنے والے نامردوں والا کام کب سے کرنا شروع کر دیا ہے تو نے؟ میرے لہجے میں انتہائی درجے کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ اچھا کیا تو نے جو مجھے بتا دیا۔ میرے بندے مر تو جاتے لیکن لڑکی ضرور لاتے۔ تو نے اپنی باتوں میں خود ہی اشارہ دے دیا ہے کہ سازش کرنے والا نامرد کون ہے۔ میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ اب تو دیکھ، تجھے کیا کرنا ہے؟ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے ہنس دیا تو میں نے بھی کہکا لگاتے ہوئے کہا، وقت جس کے ہاتھ میں ہوگا فیصلہ اسی کے حق میں ہو جائے گا۔ وہ لڑکی میرے پاس ہے، اس کے ساتھی بھیج دو، میں لڑکی انہیں دے دوں گا۔ حملہ آوروں کی جیپ میرے گھر کے باہر کھڑی ہے، دیکھتا ہوں وہ جیپ کون لے کر جاتا ہے۔ چلو، طے ہوا۔ لڑکی کے ساتھی تیرے پاس آ جاتے ہیں، لیکن انہیں ان کے ٹھکانے تک بحفاظت پہنچانا اب تیری ذمہ داری ہوگی۔ ہے تم میں اتنا دم؟ اس نے بڑا خوبصورت پینترا بدلا تھا۔ اس نے اتنے اچھے انداز میں مجھے دھمکی دی تھی کہ ایک بار تو جھوم اٹھا۔ اس نے میرے حوصلے کو چیلنج کر دیا تھا۔ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں پیرزادہ وقاص، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ لو پھر کر انتظار، بھجوا رہا ہوں انہیں، رب راکھا، اس نے جوش سے کہا اور فون بند کر دیا۔ میرے ہاتھ میں ریسیور میں ٹو ٹو کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بے دہانی میں ریسیور رکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔
वो क्या खेल खेलना चाहता था। नया पैराग्राफ। जालंधर शहर के बाहर ही अनुजीत ने गाड़ी एक ज़ेली सड़क पर मोड़ दी। उसका सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। दोपहर ढल रही थी जब अनुजीत ने अपनी जेब से सेल फोन निकाला और नंबर तलाश करके पुश कर दिया। चंद लम्हों बाद राब्ता हो गया तो उसने कहा, जी हम जालंधर से ओगी के रास्ते पर हैं। आप बस देख लें कितनी देर लगेगी। हाँ, बस पहुंच कर इतला देता हूँ। इतना कहकर उसने फोन बंद करके फिर अपनी जेब में डाल लिया, जिस पर जसपाल ने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। हालांकि अंदर से तजस्सुस भरा हुआ था। चाहे गांव उसका अपना था, लेकिन वहां पर इसका कोई जानने वाला नहीं था और इस अनुजीत से भी वो आज ही मिला था, चाहे पिछले 2 बरसों से राब्ता था। आगे क्या हालात होते हैं इसका इसे खौफ नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो इतना हौसला करके वैंकूवर से ही न आता। इन दोनों के दरमियान खामोशी तवील होगी। चूंकि अनुजीत का ये रास्ता देखा वाला था, इसलिए वो तेज रफ्तारी से गाड़ी भगाए जा रहा था। उसकी सारी तवज्जो सड़क पर थी। यूं जसपाल ने भी उसे बातों में लगाना मुनासिब नहीं समझा। दोपहर ढल रही थी जब अनुजीत ने अपनी तवील खामोशी तोड़ते हुए कहा, ले बे जसपाल सिंह जी, वो सामने जो गांव नजर आ रहा है ना, वही तेरी मंजिल है, तेरा पिंड ओगी। उसने देखा हरे भरे खेतों के सिरों पर से आबादी शुरू होती थी, लेकिन उसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। इसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया, अरे ये तो काफी बड़ा गांव है। ओ यार, तकसीम हिंद के वक्त इस पिंड की 3 नंबरदारियां थी और 3 पंचों में से 1 सरपंच था। अब तो इतनी आबादी हो गई है कि चाहे इस पिंड को तहसील का दर्जा दे दो, तुम खुद देख लेना। उसके लहजे में काफी हद तक तफाहुर था। हाँ, वो तो देखूंगा, सबको ही देखूंगा। उसे एक तवील सांस लेते हुए कहा। शायद अनुजीत ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था, वरना वो उसके लहजे पर चौंकता जरूर। इस वक्त अनुजीत ने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी, जबकि गांव अभी फरलांग भर के फासले पर था। इससे पहले कि जसपाल उससे रुकने की वजह पूछता, वो खुद ही अपनी तरफ सड़क के दाएं जानब एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो, वो बड़ी सारी कोठी खेतों के दरमियान। हाँ, देख रहा हूं। जसपाल ने सुर्ख और सफेद 2 मंजिला खूबसूरत कोठी की जानिब देखते हुए कहा। एक पुख्ता रास्ता सड़क से कोठी तक जा रहा था। सब्ज खेतों के दरमियान चमकती हुई धूप में वो घर बहुत खूबसूरत लग रहा था। तभी अनुजीत ने कहा, ये वो घर है जहां मैं रहता हूं, अच्छा है। जसपाल सिंह ने दिल से तारीफ की। अब बता, पहले घर जाना है या सीधे वहां जाओगे जहां तुम्हारा आबाई घर था, बोलो। उसने कदरे एतमाद से कहा। जसपाल चंद लम्हों के लिए हैरान रह गया। तभी उसने पूछा, तू मेरे आबाई घर के बारे में कैसे जानता है, जो कि मैंने तुझे कभी नहीं बताया? ये सब कुछ मैं नहीं, मेरी बेबे बताएगी। बस तो अपने दिमाग पे बोझ न डाल, तुझे सब पता चल जाएगा। अनुजीत ने उसी कदर अपनाहियत से कहा तो वो मजीद सवाल न कर सका, इसलिए बड़े सुकून से बोला, तो फिर अनुजीत, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। उसका इंदिया पाते ही अनुजीत ने अपना सेल फोन निकाला और नंबर पुश करके राब्ता हो जाने का इंतजार करने लगा। फिर कुछ लम्हों के बाद बोला, जी हम पहुंच गए हैं और हवेली की तरफ जाएंगे पहले, फिर वापस आकर बातें होती रहेंगी। इस पर जसपाल कुछ नहीं बोला। उसने तय कर लिया था कि देखें अनुजीत क्या करता है। कुछ ही देर बाद अनुजीत ने 2 फरलांग भर फासला तय किया और गाड़ी गांव के दाहले रास्ते पर डाल दी। मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ वो एक चौराहे में आ गया, जो काफी कुशादा था। चौराहे के दरमियान में एक बरगद का दरख्त था, जिसके इर्द गिर्द गोल पुख्ता थड़ा बना हुआ था। वहां काफी सारे लोग, मुख्तलिफ उम्र के लोग बैठे हुए थे। ये गांव की सत यानी चौपाल थी। इन लोगों से कुछ फासले पर अनुजीत ने गाड़ी रोक दी, फिर उतरते हुए बोला,
इस गांव में ऐसी 6 और 7 हैं, लेकिन सबसे पुरानी यही है। यही सारा दिन ये बूढ़े और फारिग लोग अपना वक्त गुजारते हैं। देखो, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ और। मतलब ये गांव का क्लब है, जसपाल ने कहा और दूसरी जानिब उतर गया। दूसरी बार इस गांव की मिट्टी उसके पांव तले आई थी। उसके लिए सब कुछ नया था, बिल्कुल अनोखा। भारतीय पंजाब का हकीकी रंग, वो रंग जो उससे पहले उसने कभी फिल्मों या तस्वीरों में भी नहीं देखा था। उसने सुना ही था कि पंजाब का इलाका बहुत अमीर है, और ये हकीकत है कि चाहे भारतीय पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब, इलाका अमीर है, लेकिन वहां के बेशतर से ज्यादा लोग गरीब हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो सियासी और माशी तौर पर मजबूत हैं, दूसरे लोगों का हक गजब कर जाते हैं। ये सियासत भी बड़ा बेगैरताना खेल है। जिस खेल की बुनियाद ही मुनाफकत हो, उसमें इंसानी फलाह का पहलू कहां से आ सकता है। अब मालूम नहीं उसे यहाँ के और कितने रंग देखना थे। ये तो किस्मत और जिंदगी पर मुनहसिर था कि वो इसका साथ देती भी या नहीं। वो इन लोगों को गौर से देख रहा था, जबकि वो सारे जो कुछ भी कर रहे थे सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। उसने दूर ही से हाथ जोड़कर सबको फतह बुलाई और अनुजीत की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो उसकी पुश की जानब इस्तादा बड़ी सारी हवेली को देख रहा था। ये है तुम्हारी आबाई हवेली जसपाल, 28 बरस से ये वैसी की वैसी है, अनुजीत ने कहा तो जसपाल के दिल पर एक घूंसा लगा। उसने अपनी डुबडुबाई आंखों से उस बदकिस्मत हवेली को देखा जिसके सारे मकीन 28 साल पहले कत्ल करके जला दिए गए थे। इस हवेली की हालत अपनी खामोश जुबान से खुद ही बता रही थी कि इस पर और इसके मकीनों पर क्या क़यामत गुजरी होगी। 28 बरस पहले उठने वाले धुएं से जो स्याही आई थी, वक्त ने उसे मजीद स्याह कर दिया था। न जाने कितने सावन और कितनी बारिशें हुई होंगी, मगर इस हवेली की किस्मत में स्याही ही रही। जला हुआ फाटक बंद था। शायद लोगों ने पानी डालकर आग बुझाई होगी। लोहे पीतल के कुंडों के दरमियान में से अंदर का भयानकपन दिखाई दे रहा था। तभी उसने भीगते हुए चेहरे और भीगते हुए लहजे में पूछा, अनुजीत, क्या कभी कोई इस हवेली के अंदर नहीं गया? नहीं जसपाल, सच पूछो तो लोग इस हवेली के अंदर जाने से डरते हैं, अनुजीत ने दुखी लहजे में कहा। तब उसने हैरत से पूछा, वो क्यों? यह हवेली सन 84 के मई में मुकम्मल हुई थी और इसी महीने सब लोग इसमें आकर रहने लगे थे। जुलाई में ये सानहा हो गया और लोग इस हवेली को मनहूस ख्याल करने लगे और अब तक करते हैं। ये सुनकर जसपाल मजीद कुछ नहीं बोला, बल्कि उसे खुद पर काबू पाने में कई लम्हे लग गए। फिर उसने अपनी हिम्मत जमा की और धकेल कर फाटक को खोला। जरा सी चिड़चिड़ाहट के बाद वो खुलता चला गया। ड्योढ़ी में गंध भरा पड़ा था। वो चलता चला गया। आगे सेहन की हालत भी वैसे ही थी। सिर्फ एक सरसब्ज दरख्त खड़ा था, नीम का सरसब्ज दरख्त, जिसके पत्ते 28 बरस से गिर रहे थे और सेहन में सरांड जैसी बू फैली हुई थी। वो सेहन पार करके तवील बरामदे में आ गया। स्याह कमरे उसकी आंखों के सामने थे। फिर उसकी आंखों के सारे मंजर डूब गए। यही इस हवेली में, यहाँ सेहन, बरामदे और इन कमरों में उसका बापू, माँ, ताए, ताइयाँ, चाचा, चाची, उनके बच्चे और फुफ्फी सब जिंदा रहे थे। और अब एकदम से कोहराम ज़दा चीहू पुकार उनके कानों में गूंजने लगी। हवाएं बैन करने लगी, दीवारें मातम कना होने लगी। इस आहो बका में वो जी कड़ा के वही खड़ा रहा। उसके अंदर नफरत का अलाव पूरी कुव्वत से तड़तड़ाने लगा था। उसके अंदर नफरत का अलाव पूरी कुव्वत से तड़तड़ाने लगा था और वो लम्हात किसी तेल की मानद उसे मजीद भड़का रहे थे। रगों में दौड़ते हुए खून में
हर हलिया नफरत में भीगा हुआ था, जिसमें इंतकाम रच बस गया था। नफरत और इंतकाम दोनों मिलकर उसका जिस्म फाड़ देने को थे, और वो खुद को टूट जाने से बचाकर अपने आप पर काबू पा रहा था। इन लम्हात में अगर वो खुद पर काबू न रख पाता तो सारी जिंदगी की रियाजत जाया हो जाने वाली थी। ऐसे वक्त में जबकि वो खुद को संभाल रहा था, उसकी पुश्त पर एक नरम सा हाथ आन ठहरा। उसे लगा जैसे भड़कती हुई आग पर सावन की रिमझिम फुहार पड़ने लगी है। वो चौंक गया। उसने आहिस्तगी से मुड़कर देखा। निगाहों में ममता, चेहरे पर मोटे नकूश, खिलते हुए रंग में से झलकता हलूस, सर पर मोतिया रंग का आंचल लिए फरमा माइल बुजुर्ग सी खातून उसे पुरशौक निगाहों से देख रही थी। पुत्र जसपाल, मैं अनुजीत की बेबे हूँ, तेरी फुफ्फो सुखजीत कंवर की गहरी सहेली कुलजीत कुंवर। कुलजीत कुंवर, आप? जसपाल सिंह ने हैरत से उसके चेहरे पर देखते हुए कहा। ये नाम उसने अपनी फुफ्फो से बारहा सुना था। हाँ पुत्र, तू चल मेरे साथ घर, वही चलकर बातें करते हैं। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि तू जितनी देर यहाँ ठहरेगा उतना ही। ये कहते हुए कुलजीत कंवर का अपना गला रुंध गया। जसपाल ने चंद लम्हे कुलजीत कंवर के चेहरे को देखा, जो शिद्दते जज्बात से सुर्ख हो गया था। फिर वो उसके गले लग गया। उसे यूं लगा जैसे वो बहुत दिनों के बाद अपनी फुफ्फो से मिल रहा हो। एक दूसरे से जुदा हुए तो जसपाल ने उसका हाथ पकड़कर बाहरी जानिब चल दिए। सेहन में फैले हुए नीम के दरख्त की तरफ देखते हुए कुलजीत कंवर ने कहा, सिर्फ यही बचा है तेरी तरह। तेरी और इसकी उम्र एक जितनी है। गौर कर पुत्र जसपाल, इस दरख्त को पालने वाला दुनिया में कोई शख्स नहीं है, पर रब तो है पालने वाला। देख, जिसे कोई नहीं पालता रब उसको फल देने वाला बना देता है। इसे किसी ने नहीं तराशा, पर रब ने इसको किस कदर सरसब्जो शादाब कर दिया है। मेरी ये बात पल्ले बांध ले पुत्र। उन जज्बाती लम्हों में जसपाल ने कुलजीत कंवर के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, फूफो वादा करें, आप मुझे वो सब कुछ सच बता देंगी जो मैं नहीं जानता। हाँ पुत्र, मैं सब कुछ बता दूंगी, मगर एक वादा तुमने भी मुझसे करना है। ऐसा कोई वादा मत लेना फूफो जिसे मैं पूरा न कर सकूं। जसपाल ने सोचते हुए कहा, चल फिर छोड़, बाद में बात करेंगे, आओ चलें। वह मायूसी भरे लहजे में बोली और बाहर की जानब चल दी। वो उसके साथ साथ चलता हुआ बाहर तक आ गया। बाहर लोगों का ठठ लग चुका था। हर किसी को ये मालूम हो चुका था कि कलविंदर सिंह का पुत्र और इस हवेली का मालिक आ गया है। वो सब इसे देखने के मुश्ताक थे। जसपाल रुक रुक कर उन सब को देखने लगा। वो सब मुख्तलिफ उम्र के मर्द और खवातीन, जवान लड़के लड़कियां थीं। तब अनुजीत ने अपनी बेबे से कहा, बेबे तुम चलो, मैं जसपाल के साथ थाने से होकर आता हूँ। थाने? मगर क्यों? जसपाल ने पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम गैर मुल्की पासपोर्ट पर वीजा लगवा कर भारत आए हो, फिर सिख भी हो? थाने में रिपोर्ट तो करना होगी, क्योंकि तुम गैर मुल्की हो। शायद तुम्हें इस मुल्क का शहरी भी तस्वुर न किया जाए, कि तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि तुम्हारा ताल्लुक इसी मुल्क से है। अनुजीत के लहजे में तंज की काट थी, जैसे वो इसके बारे में न कह रहा हो बल्कि अपनी कौम का नोहा पढ़ रहा हो। इस पर जसपाल ने तवील सांस ली और सुकून से कहा, ठीक है। जैसे ही कुलजीत कंवर अपनी सफेद कार में ड्राइवर के साथ वापस चली गई, अनुजीत अपनी जीप की तरफ बढ़ा। जसपाल उसके साथ वाली नशिस्त पर बैठ गया तो उसने जीप बढ़ा दी। उनका रुख थाने की तरफ था। नया पैराग्राफ। मैं बेचैनी से पीरज़ादा वक्कास का इंतजार कर रहा था। अब तक उसकी तरफ से आने वाले लोगों को आ जाना चाहिए था। छाका तैयार होकर आया तो उसे बदली हुई सूरत हाल के बारे में मालूम हुआ। उसने फौरन ही अपने चंद दोस्तों को इकट्ठा कर लिया। वो सब घर के बाहर मुख्तलिफ जगहों पर फैल गए।
ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। जबकि मैं सहन में टहलने लगा। अम्मा और सोनी भी सूरत हाल से आगाह थी। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैं 2-3 बार छत पर से होकर आ गया। मेरे घर की छत से दूर तक सड़क साफ दिखाई देती थी। इस बार जब मैं छत पर गया तो मुझे एक हाईएस वैन आती हुई दिखाई दी। मुझे उस पर शक हुआ। ऐसी वैगनें हमारे इलाके में नहीं चलती थी। मैंने तेजी से अपने साथी को इशारा किया, फिर खुद ही उतरकर गली में आ गया जहां मेरी बाइक पहले ही खड़ी थी। छाके वगैरह ने गली में खड़ी हुई जीप को धक्का लगाकर गली के किनारे लगा दिया था। कुछ देर बाद वो हाईएस गली में दाखिल हुई और फिर मेरे दरवाजे के सामने आन रुकी। उसमें काफी सारी औरतें और मर्द थे। उन औरतों के चेहरे शनासा थे। एक मोटा सा शख्स बाहर निकला और बड़े मुअद्दब लहजे में बोला, वो जी सोहनी आपके पास, वही ठहरो, अभी बुलाता हूँ। मैंने कहा और पलटकर गेट में आ गया। सोहनी नीम के दरख्त तले अम्मा के साथ खड़ी थी। मैंने उसे वहीं से हाँक लगाते हुए कहा, आ जाओ सोहनी, तुम्हारे लोग तुझे लेने के लिए आ गए हैं। मेरे यूं कहने पर वो अम्मा के गले लग गई, फिर अपने आंसू पोंछती हुई बाहर की दानब चल पड़ी। तब मैंने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ। वो ठटक कर खड़ी हो गई। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा इसके वो कपड़े जो ये पहनकर यहाँ आई थी, वो तो दे दो इसे। अम्मा को जैसे होश आ गया, वो पलटी और चंद मिनटों में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लाकर सोहनी को दे दिया। उसे अम्मा की तरफ देखा और फिर तेजी से मेरी जानब लग गई। उस पर निगाह पड़ते ही वैगन में मौजूद लोगों की जान में जान आ गई, जबकि सोहनी मेरे सामने खड़े मेरे चेहरे पर देख रही थी। उसका अंदाज यूं था जिसे मेरा चेहरा अपनी आंखों में जज़ब कर रही हो। फिर आहिस्तगी से बोली, जमाल, मैं तुझे हमेशा याद रखूंगी और तेरा इंतजार करूंगी, जब चाहे आजमा लेना। मैं उसे कहना चाहता था कि जाओ, ये डालागबाजी मत करो, जाने वाले कहां पलट कर देखते हैं, मगर वो मेरा रद्द अमल देखे और मेरी बात सुने बगैर वैगन की तरफ बढ़ी और इसमें सवार हो गई। जब तक वो मोटा शख्स मेरे करीब हुआ और बड़े मुअद्दब लहजे में बोला, पीरजादा साहब का पैगाम है कि आप उन्हें फोन कर लें। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वो पलटकर पैसेंजर सीट पर जा बैठा। तब तक मैं भी अपनी बाइक पर बैठ चुका था। वैगन से बढ़ते ही मैंने अपनी बाइक बढ़ा दी और फिर जिस वक्त वो चौक पार कर रहे थे तब तक 6 मोटरसाइकिलें वैगन के इर्द गिर्द चल पड़ी थी। हर मोटरसाइकिल पर 2-2 बंदे थे और वो सब असले से लैस थे। अगर कुछ होना होता तो यही होना था, क्योंकि गांव की गलियों से निकलता हुआ ये काफिला सड़क पर आ गया था और सामने सरदार शाहदीन की हवेली थी। मैं पूरी तरह चौकन्ना था। वैगन ने सड़क पर चढ़कर शहर की तरफ रुख कर लिया। चंद ही किलोमीटर तक हम उनके साथ गए, फिर पलट आए। इस दौरान मैंने सोनी की झलक कई बार देखी। जब भी मेरी निगाह उस पर पड़ी वो मेरी तरफ ही देख रही थी। छाके ने उन्हें शहर तक छोड़कर आना था, वो भी उनके साथ बढ़ गया। उनके साथ एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे। मैं समझ गया था कि सरदार शाहदीन ने मुझे धमकाने की कोशिश की थी, जो नाकाम हो गई थी। मैं किसी ऐसे ही वक्त का इंतजार कर रहा था जब सरदार मेरे साथ दुश्मनी का आगाज करे, और मेरे ख्याल में वो ऐसा कर चुका था। शायद वो मेरा हाथ मुझे यही बताने के लिए था कि जिस जंग की मैंने बचपन से ख्वाहिश कर रहा था वो शुरू होने वाली है। मुझे पीरजादे को फोन करना था। मैंने चौक में जाकर उसे फोन किया। वो घर पर नहीं था, सो मैं डेरे की तरफ चल दिया। उस वक्त दोपहर हो चुकी थी और मैं डंगरू को चारा डालकर बैठा ही था। बेदा दूध दोहने की तैयारी करने के लिए बर्तन में पानी भरकर ले गया हुआ था। उस दिन हमें देर हो गई थी। मैं और बेदा मगरिब तक मसरूफ रहते। अभी कुछ देर बाद गवालों ने आ जाना था जो हमसे दूध खरीदते थे। अगरचे देर हो जाने की वजह से मुझे बेदे का हाथ बटाना था, मगर मेरा ज़हन
काम की तरफ नहीं था, बल्कि मैं बहुत कुछ सोच रहा था। पिछले कई घंटों से जो मेरे साथ पै दर पै वाकयात पेश आए थे, मुझे उनका सिरा नहीं मिल रहा था। मेरा दिमाग भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरा ख्वाब और ये वाकयात, इनमें कोई ताल्लुक है। इन्हीं लम्हात में डेरे की जानब से आने वाले कच्चे रास्ते पर सफेद करोला आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे धूल उड़ रही थी, जिसमें 2-3 और भी गाड़ियां आती हुई दिखाई दी। मैं पहचान गया था, वो शाहजेब की गाड़ी थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि पीरजादा वकास के साथ बात करके मेरा अंदाजा था कि वो मेरे पास जरूर आएगा। उसने बाहर वाले फाटक पर ही गाड़ी रोक दी, तो बाकी गाड़ियां भी वहीं रुक गईं। वो अपनी गाड़ी से निकला और बड़ी बेतकल्लफी से तन्हा फाटक खोलकर अंदर डेरे में आ गया। बाकी लोग बाहर ही खड़े रहे। अलैक सलैक के बाद वो चारपाई पर फैल कर बैठ गया। मैं उसके सामने वाली चारपाई पर बैठा तो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोला, पीरजादा वकास ने बड़ी गहरी साजिश करके मात वाला बदला ले लिया। तुम शायद ना समझो, लेकिन मैं जानता हूं कि उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। कौन सा नुकसान और कितना? सरदार शाहजेब, मैंने कहा तो बावजूद कोशिश के तंज को अपने लहजे से अलग नहीं कर पाया। तभी वो तासुब से बोला, ये नुकसान रुपए पैसे का नहीं है जमाल। उसने जो मेरे खिलाफ तेरे दिल में शक का जहर उतार दिया है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। नोटों से पूरा करना भी नामुमकिन है। मैं समझता हूँ सरदार जी, कौन क्या कर रहा है, इतनी अक्ल है मुझ में। मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, जहां अफसोस भरा तासर फैला हुआ था। मेरी बात सुनकर वो धीमे लहजे में बोला, अक्ल ही तो नहीं है तुझे, वरना तू भी वक्त के साथ चलता। आज तेरा शुमार अक्खड़ और बदमिजाज लोगों में ना होता। तूने पता नहीं अपने लिए क्या म्यार बनाया हुआ है। तुझे कोई बंदा ही पसंद नहीं आता, मसलहत से काम ही नहीं लेते हो। एक मसलहत ही तो नहीं आती मुझे। मैं क्यों ऐसे बंदे को पसंद करूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और जहां तक वक्त की नजाकत का ख्याल है ना शाहजेब, जो हमला आवर मेरे घर चढ़ दौड़े थे, उन्हें अगर लम्हों का वक्त भी दे देता तो वो मुझे मार कर वहीं फाटक पर फेंक जाते जहां अभी तक उनकी जीप खड़ी हुई है। इन्हीं बंदों का तो पता नहीं चल रहा कि वो कौन थे। हमेशा अधूरी बात ही उलझन पैदा करती है जमाल। कोई एक बंदा भी उनका पकड़ लेते ना, तुम तो आज यहां आकर मुझे तुमसे बात ना करना पड़ती। तुझ पर सारा खेल खुद ब खुद खुल जाता। तेरे अंदर जो शक का नाक फुनकारने लगा है ना, ऐसा ना होता। वो उसी तरह तशवीश से बोल रहा था जैसे वक्तन बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। सोचने वाली बात यह है कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, कोई गिला, कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। और शाहजेब, ना ही तुम पहुंचे हुए बाबा हो कि मेरे अंदर बैठे शक का नाक को फनकारते हुए देख रहे हो। बात क्या है सरदार, जरा खुल के बोलो। मैंने उसकी तरफ देखते हुए तजस्सुस से पूछा तो वो गुस्से से बोला, सारी कहानी मुझे पीरजादा वकास ने फोन पर बताई है। उसे ये भी कहा है कि रात होने से पहले पहले उसने बदला ले लिया है। उसने मुझे इस पोजीशन पर ला खड़ा किया है कि मैं तुझे अपनी सफाई भी नहीं दे सकता और ना तुझे ये बावर करा सकता हूं कि ये सारा कुछ किया धरा उसी का है। उसी ने साजिश की है मेरे खिलाफ तुझे भड़काने के लिए। मैं इतराफ करता हूं जमाल कि वो इसमें कामयाब है। ठीक है, मान लिया सरदार जी कि ऐसा ही होगा, लेकिन इस वक्त मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने पुरसकून लहजे में पूछा। सिर्फ इतना कि मेरी तरफ से या फिर हवेली वालों की तरफ से अपना दिमाग मत खराब करना। सच ये है कि मैंने अपने गुंडे भिजवाए, वो अगर कामयाब हो जाते तो भी वो अपना बदला ले लेता कि हमारी इलाके से लड़की उठाकर ले गया है और अब नाकाम हुआ है तो हमने अपने हाथों से लड़की उसे दे दी। अपनी हिफाजत में लड़की को शहर तक छोड़कर आए। गौर करो, उसकी साजिश कामयाब है।
وہ تعصب سے بولا، تمہیں معلوم ہے شاہزیب کہ میں اپنے دماغ سے سوچتا ہوں، میں نے سوچ لیا ہے، ہاں اس کی سازش کامیاب ہے، اگر ناکام کرنا چاہتے ہو تو ابھی بھی وقت ہے، کر سکتے ہو، ورنہ میں نے تو وہی کرنا ہے جو میں نے سوچا ہے۔ وہ کیا؟ اسے چونکتے ہوئے کہا، میرے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی جیپ، یہ پکی بات ہے کہ وہ چوری کی ہوگی۔ سردار شادین MNA ہے، پارٹی میں بڑا اثر و رسوخ ہے، پولیس والے ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، پتہ کروا لیں یہ کس نے چوری کی ہے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر ایک دم سے تن گیا، جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔